بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्च, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दुख तकलीफें ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, पांचों वक़्त का नमाजी बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। अम्बियात की दुनिया से अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने के लिए लाई हूँ, बहुत ही नया, बहुत ही आला। जैसे मैंने नूरे आफ्ताब का अमल आपको बताया, आज अमल मैं आपको बताऊंगी नूरे महताब के मोक्कल का। नूरे महताब के मोक्कल बहुत ही नया, बहुत ही बुलंद और बाला, बहुत ही आला किस्म के मोक्कल होते हैं और बहुत ही मतलब के रौबदार मोक्कल हैं। तो इसका चिल्ला सिर्फ और सिर्फ आपको 3 दिन यानी कि 3 यौम तक करना पड़ेगा। 3 दिन तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चांद की 17 तारीख, 13 तारीख और 12 तारीख आप पहला चिल्ला 12 तारीख को करेंगे, फिर 13 तारीख को करेंगे और फिर 17 तारीख को ये अमल जो आपको बताऊंगी किया जाएगा। ठीक है। आपने परहेज में गोश्त यानी गोश्त, अंडा, मछली, कच्चा लहसुन, प्याज और जमा का परहेज लाजिम करना है। ठीक है। बाद नमाज इशा चांद पर निगाह रखकर ये अमल आप करेंगे। बाद नमाज इशा जब आप पढ़ लेंगे तो छत पर आप चले जाइएगा। तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ही नायाब अमल है, बहुत आसान अमल है, आप जरूर कीजिएगा। तो अमल को 700 बार, जो पर आयत भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर चला दी गई है, तो 700 बार आप पढ़ेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह से जुबानी याद कर लें। आजकल इसलिए अमल ज्यादा कामयाब नहीं होते क्योंकि आयातों में गलती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ज़ेर ज़बर की गलती बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से आप पहले किसी कारी साहब से बैठकर उनसे ये आयत आप मतलब के पढ़ेंगे, पहले उनसे सीखेंगे कि वो आपको पढ़ना सिखाएंगे, फिर आप ये अमल कीजिएगा। जितने भी अमल है पहले उसकी पूरी जो आयतें बताई जाती हैं, अज़ाइमत बताई जाती है, मुकम्मल उसकी पहले आप पढ़ाई अच्छे तरीके से किया करें। ज़ेर ज़बर पेश मद की गलती को बिल्कुल भी करना जायज नहीं होता क्योंकि अमल में फायदा ही नहीं है जब अमल के हरूफ ही नहीं अच्छे तरीके से अदा होंगे। तो आपने 700 बार आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ाई करेंगे और सामने अगरबत्ती रोशन करेंगे। मतलब कि खुशबू के लिए आप अगरबत्ती भी इस्तेमाल करेंगे। आखिरी दिन मुकलात अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप न्याज दिलाएंगे, यानी कि आप वसल्लम के ऊपर जो न्याज पढ़ाई करेंगे उसका सवाब आप वसल्लम तक पहुंचाएंगे और दुआ करेंगे। तो फिर आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे। 3 यौम का ये अमल है। तो जब भी आपने जो है नूरे महताब के मोक्कल की हाजिरी करनी हो तो आपने पता क्या करना है। अच्छा, इनकी हाजिरी का जो टाइम है दिन का नहीं है। जब वो गुरूब आफ्ताब से तलु आफ्ताब तक आप इनको हाजिर कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, वरना रोशनी में नहीं। ठीक है। रात के वक्त कर सकते हैं। तरीका आपने क्या करना है, जो आपने आयत पढ़ी थी 700 बार आप पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते एकदम से आपके ऊपर मोक्कलीन का नज़ूल होगा, आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। और या फिर आपको मैंने एक स्याही बनाना सिखाई है, एक नहीं बल्कि 4-5 तरह की स्याही बनाना मैं आप बता चुकी हूँ आपको। आपने सीधी हथेली पर गोल दायरा बनाकर फिर उसके अंदर वो जो काजल वाली स्याही है वो भर लीजिएगा और उस इबारत को पढ़कर अपने हाथ पर आंखें बंद करके ना उस इबारत को पढ़कर तो आप दम करते रहिएगा, फूंक मारते रहिएगा अपनी हथेली पर। तो आपकी जो मोक्कलीन की जो हाजिरी है वो खुल जाएगी। फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, जो चाहे आप उनसे पूछ सकते हैं। मोक्कलीन जो भी आप सवाल करेंगे उसका अल्हम्दुलिल्लाह
صحیح جواب عطا کریں گے. اور جب بھی آپ نے ان کو بلانا ہو بس وہ جو عمل آپ نے جس کی آپ عامل بنے ہیں یعنی کہ جس کی زکوٰۃ ادا کی ہے اس آیات پڑھتے جائیے گا اور ان کی حاضری کا نزول ہونے لگ جائے گا. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اجازت کا طریقہ بہت لازم ہے. اجازت کا طریقہ آنے والی فیڈ جو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اجازت کیسے لینی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کمنٹس باکس میں اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کیا کریں. نمبر 2 کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈسکرپشن میں تمام جو ہے ویڈیوز کے لنک دے دیے جائیں, وہ بھی دے دیے ہیں. تو اب ای میل بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی, آپ ای میل سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتے